الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم حسبنا اللہ و نعم الوکیل رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 36 سے 40 تک آج مطالعہ ہے، اور جو کل ہم نے اس کا آغاز کیا تھا آیت نمبر 31 سے 35 تک، ان جو آخری کی جو 10 آیتیں ان کا پس منظر وہی ہے جو میں نے کل بیان کیا تھا کہ ابو جہل اور ابی ابن خلف، یہ دو شخص تھے جو قبرستان سے وہ ایک ہڈی لے کر آئے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا مذاق بنایا کرتے تھے کہ انسان مرنے کے بعد کیسے اٹھایا جائے گا، کہ جب ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو انسان وہ کیسے اٹھایا جائے گا، اور اس ہڈی کو انہوں نے ملا، اس کو چورا چورا کیا اور ہوا میں اس کو اڑا دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہا کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ کر دے، یہ بات تو ہماری عقل سے باہر ہے۔ تو وہ یہ اعتراض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا کرتے تھے، تو سورہ یاسین کے آیت نمبر 78 79 میں اللہ تعالیٰ نے ان کو رپلائی دیا اسی واقعے پر، اور اسی واقعے پہ یہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں آیت نمبر جو وہ 36 ہے اور جو 40 تک ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا ان کا رپلائی یہاں بھی وہ کریں گے۔ تو پہلے تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے ہونے کی ایک جو آخرت کیوں ضروری ہے وہ دلیل دی ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 37 سے 40 تک وہ دلیل دیں گے کہ آخرت کا ہونا ممکن کیوں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ انسان کی پیدائش پہ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرائیں گے، اور پھر کہیں گے کہ اب تم خود سوچو، اب تم خود سوچو کہ یہ آپ کا مر کر مٹی ہو جانا، ریزہ ریزہ ہو جانا، پھر اس کا زندہ ہونا زیادہ مشکل کام تھا، یا جو آپ کی پیدائش ہے، آپ اپنے پیدائش کے مرحلے پر غور و فکر کریں، آپ کیسے پیدا کیے گئے ہیں، یہ آپ کے لیے زیادہ مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو یہ غور و فکر وہ کرائے گا۔ آیت نمبر جو 36 ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وہ کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یوں ہی محمل چھوڑ دیا جائے گا، کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، محمل یعنی کہ ایسے ہی، اس سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں، اس کو کہیں جواب دہی نہیں کرنی، تو کیا وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ تو یہ آخرت کے ہونے کی ایک جو دلیل ہے کہ آخرت کیوں ضروری ہے، یہ وہ دلیل اللہ تعالیٰ یہاں دے رہے ہیں کہ انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ محمل یعنی یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، کوشچن مارک۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ایک ایک کوشچن کی شکل میں دیا ہے کہ انسان خود غور و فکر کرے کہ آپ کتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں، آخرت کا انکار کر کے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی جواب دہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کوشچن مارک کی شکل میں ایک انسان کو خود سوچنے پر مجبور کر دیا کہ آپ خود سوچیں، اپنے وجود کو سوچیں، آپ کی جو مورل ویلیوز ہیں آپ ان کے بارے میں سوچیں، جو اخلاقی حص اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے اندر رکھی ہے اس کے بارے میں سوچیں، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کتنا بڑا یہ دعویٰ کر رہے ہیں اور کتنا عقل کے خلاف ہے یہ آپ کا دعویٰ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوشچن کی شکل میں چھوڑ دیا ہے، کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، دنیا میں جو مرضی کرتا پھرے، اس کی کوئی پکڑ نہیں، چاہے جتنا مرضی ظلم کر لے، چاہے کسی کا بھی حق مارے، تو کیا اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، مرنے کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں ہے اس سے؟ اس میں جو ایک عربی کا جو جملہ ہے صدی، یہاں ورڈ آیا ہے آیت کے آخر میں، تو ابن جو صدی ہے عربی میں اس اونٹ کے لیے بولتے ہیں جو یوں ہی مطلب کہ وہ چھوٹا پھرتا ہے، وہ جدھر چاہے کہ چرتا پھرے، جس کھیت میں چاہے منہ مار لے، کوئی اس کی نگرانی کرنے والا نہ ہو، تو ابن الصدی اس اونٹ کو کہتے ہیں عربی میں۔ اور اسی کے ہم معنی ہمارے معاشرے میں ایک جو ٹرم ہے اردو کا ہے، بے نکیل کا اونٹ، یعنی بے نکیل کے اونٹ کی طرح، ایک محاورے میں ہم بات کرتے ہیں نا کہ یہ تو بے نکیل کے اونٹ کی طرح، یعنی اس کی کوئی نگرانی کرنے والا نہیں ہے، اس پہ کوئی نکیل ڈالنے والا نہیں ہے، یہ جو مرضی وہ کرتا پھرے۔ تو کیا انسان خود کو یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ بے نکیل کا اونٹ ہے؟ کیا انسان اپنے آپ کو بے نکیل کا اونٹ سمجھ رہا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، جیسے کہ بے نکیل کا اونٹ ہوتا ہے وہ یوں ہی چھوڑ دیا پھرتا ہے، وہ جہاں مرضی چرتا پھرے، جو مرضی کرتا پھرے، کوئی اس کی پوچھ گچھ کرنے والا نہیں ہے؟ تو اسی سے آیت کا مطلب ہمیں سمجھ میں آیا کہ انسان نے بھی خود کو یہی سمجھ لیا ہے کہ وہ کسی کے سامنے ذمہ دار نہیں ہے، وہ خود کو سمجھتا ہے کہ وہ غیر ذمہ دار ہے، اس کو کہیں جواب دہی نہیں کرنی ہے، اور انسان سمجھتا ہے نہ ہی کوئی اس دنیا میں آ کر اس پہ کوئی فرض عائد ہوتا ہے کہ اس کو اسے پورا کرنا ہے، اور نہ ہی کوئی اسے حرام اور حلال کی تمیز کرنی ہے۔
और इंसान ये समझता है कि कोई वक्त ऐसा आने वाला भी नहीं है कि उसके अमाल की पूछ गछ हो। यानी इंसान क्या खुद को जानवर समझ रहा है? जैसे बेनकेल का ऊंट है, ऐसे ही वो क्या खुद को समझ रहा है कि मैं भी वो जानवर हूँ, कि मुझ पर कोई फर्ज नहीं है, कोई वक्त आने वाला नहीं है कि जिसमें पूछगछ नहीं हो, जिसमें मुझसे कोई सवाल जवाब वो ना किया जाए। और यही बात अल्लाह ताला ने एक दूसरे मकाम पर भी कुरान में फरमाई है। सूरह मोमिनीन आयत नंबर 115 में अल्लाह ताला ने कहा, वो क्या तुमने ये समझ रखा है कि हमने तुम्हें फजूल ही पैदा किया है और तुम्हें कभी हमारी तरफ पलट कर नहीं आना है? क्वेश्चन मार्क। तो अल्लाह ताला ने इस सूरह मोमिनीन के आयत नंबर 115 में भी एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। यानी अल्लाह ताला जो जवाब दे रहा है ना, ये जवाब तो दे रहा है काफिरों को, लेकिन उसमें अल्लाह ताला खुद क्वेश्चन मार्क लगा रहा है, और उसका आंसर वो काफिरों के ऊपर ही मतलब कि छोड़ रहे हैं कि आप खुद सोचो विचार करें, आप खुद गौरव फिक्र करें, आप कितना बड़ा दावा कर रहे हैं। तो सूर्य मोमिनीन में अल्लाह ताला ने कह दिया कि इंसान खुद को यूं समझ रहा है कि वो फजूल ही पैदा किया गया है, उसका कोई मकसद नहीं है जिंदगी में आने का, दुनिया में आने का उसका कोई मकसद नहीं है। और क्या ये खुद को ये समझ रहा है कि इसको हमारी तरफ पलट कर नहीं आना है? और इस आयत में कह दिया अल्लाह ताला ने एक क्वेश्चन ये लगाया, क्या इंसान ये समझ रखा है कि वो यूं ही छोड़ दिया जाएगा, मुहम्मल छोड़ दिया जाएगा? तो अगर इन दोनों जो मकामात हैं कुरान में, सूर्य क़यामह की आयत नंबर वो 36 है, सूर्य मोमिनीन की आयत नंबर 115 है, इन दोनों को अगर हम एक साथ रखकर देखें तो इससे एक ही रिजल्ट पे हम पहुंचते हैं कि इंसान इंसान जो ये दो क्वेश्चन मार्क अल्लाह ताला ने लगाए हैं उस पे इंसान गौर व फिक्र करे। क्या आपको दोनों चीजों में फर्क नजर नहीं आ रहा कि अपने आप में और एक जानवर में क्या खुला फर्क आपको नजर नहीं आ रहा? कि जानवर है वो बेइख्तियार है, उसको कोई इख्तियार नहीं है, उसको कोई फ्री विल नहीं है, और तुम बाइख्तियार हो, तुम्हें फ्री विल दी है अल्लाह ताला ने। इंसान के ऊपर अखलाकी खूबी का भी सवाल होता है। इंसान जानता है ये अच्छा है ये बुरा है, इस चीज की इंसान को समझ है, और ये समझ वो जानवर में नहीं है। इसलिए तुमने ये कैसे समझ लिया कि तुम वो जानवर से इतने अलग हो, तो तुम ये कैसे समझ सकते हो कि तुम और जानवर में कोई फर्क नहीं है? जैसे जानवर गैर जवाबदेह है, गैर जिम्मेदार है, ऐसे ही क्या तुम खुद को ये समझ रहे हो कि तुम गैर जवाबदेह और गैर जिम्मेदार हो, तुम्हें कोई हिसाब किताब नहीं देना इस दुनिया के वो जाने के बाद? तो ये अल्लाह ताला यहाँ पर वो समझाना वो चाह रहे हैं। एक अक्ल में आने वाली बात तो ये है कि अगर कोई जानवर के मुतालिक ये बात करे कि जो जानवर है वो तो फितरत के जो लगे बंधे कानून हैं जो अल्लाह ताला ने उनको सेट किया है, कि बस वो अपने फितरी तकाजे पूरे करते हैं और उसके बाहर वो नहीं जाते हैं, वो कोई अपनी अकल से कोई फलसफा नहीं बगाड़ते। ना ही कोई जानवर देखा होगा किसी मजहब की उन्होंने बुनियाद रखी है, ना ही कोई जानवर देखा होगा आपने कि उसने अल्लाह के सिवा किसी और को माबूद बनाया है, उसकी पूजा में वो लग गए हैं। ना ही कोई जानवर आपने ऐसा देखा होगा कि जिसको नेक कहा जाए या जिसको बद कहा जाए, क्योंकि उनमें वो अखलाकी खूबियां हैं ही नहीं। और ना ही कोई जानवर ऐसा देखा होगा कि जिसने या तो दुनिया में अच्छा काम राइज किया हो कि उसके जाने के बाद लोग उससे फायदा उठा रहे हैं, या कोई जानवर ऐसा नहीं देखा होगा जिसने दुनिया में कोई बुरा काम इजाद किया और उससे उसके जो असरात हैं, उसके नुकसान के असरात वो नस्ल वो चलते ही चले जा रहे हो। तो ये सब तो आपने देखा नहीं है। यानी अगर ये बात जानवर के मुतालिक हो कि उसको जवाबदेही नहीं करनी है, तो बिल्कुल अक्ल में आने वाली बात है ये, बिल्कुल अक्ल में आने वाली बात है। लेकिन अगर ये बात कोई इंसान के लिए कहे कि वो गैर जवाबदेह है, वो दुनिया में जो मर्जी करता फिरे, कोई उससे पूछगछ नहीं है, तो ये बात अक्ल के खिलाफ है। क्योंकि जानवर को तो मरकर फना हो जाना है, उससे कोई हिसाब किताब नहीं है, लेकिन इंसान को इस दुनिया के बाद एक दूसरी दुनिया में उसको जिंदा किया जाएगा और उससे पूछगछ होगी उसके हर एक काम की। इंसान और जानवर में यही एक फर्क है जो हमें अलग करती है। पहला फर्क तो इंसान को फ्री विल दी है, जानवर को वो फ्री विल नहीं दी है। दूसरा जो फर्क है, इंसान में अखलाकी खूबियां हैं, वो जानता है कि ये अच्छा है ये बुरा है, और इंसान को ये अखलाकी समझ नहीं है, मॉरल वैल्यूज नहीं है आज की जानवर के पास। तो ये बड़े फर्क हैं, जिसकी बेस पे ये है कि जानवर अगर अल्लाह के सामने गैर जवाबदेह है तो भी ये बात अक्ल में आने वाली है, लेकिन इंसान अल्लाह के सामने गैर जवाबदेह हो, ये बात अक्ल में आने वाली नहीं है।
اس کے کچھ एग्जाम्पल हो सकते हैं कि कोई आदमी अगर वो किसी का कत्ल कर दिया, उसने अभी अभी उसने जस्ट कत्ल किया और फौरन उस आदमी का भी एक्सीडेंट हो गया कत्ल करने वाले का, तो तुम्हारे नजदीक मतलब क्या है? क्या उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए वो कत्ल करने की? क्या जो उसने जुल्म किया था किसी के कत्ल करने का, क्या उसकी सजा उसको कभी नहीं मिलनी चाहिए? क्योंकि दुनिया वालों की नजर में तो वो भी मर गया ना। एक आदमी है, उसने कत्ल कर दिया एक इंसान का, और तुरंत उसका, वो कत्ल करने के बाद उसका एक्सीडेंट हुआ और उसकी भी मौत हो गई। तो दुनिया वालों की नजर में क्या वो गए? अगर इंसान गैर जवाबदेह है तो दुनिया में तो उसका कोई रिजल्ट निकले ही नहीं है। यानी एक ऐसी दुनिया होनी चाहिए। ये दुनिया नामुकम्मल है बिना आखिरत के। इसके और एग्जाम्पल हो सकते हैं। एक बूढ़ा शख्स है, जिसकी जिसकी उम्र 70 साल है, उसने एक ऐसे शख्स का कत्ल कर दिया जो भी 20 साल का है, या जो भी 25 साल का है, उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, उसने उसका कत्ल कर दिया। तो अगर आप दुनिया में उस बूढ़े को मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, क्या सजा दे सकते हैं? मैक्सिमम मौत के ऊपर कोई सजा नहीं है। मार ही तो सकते हैं उसको, 2 बार तो नहीं मार सकते, एक ही बार मार सकते हैं। तो क्या ये इंसाफ हुआ इस दुनिया में? हरगिज नहीं हुआ। इसका मतलब हमारी फितरत खुद तकाजा कर रही है कि इस दुनिया में जो इंसाफ है वो नहीं हो रहा है। अगर इंसान के अंदर अखलाकी वैल्यूज हैं, अखलाकी हिस्स है इंसान के अंदर, तो उसका रिजल्ट निकलना जरूरी है। ये अक्ल माने वाली बात है। अगर इस दुनिया में नहीं निकल रहा उसका रिजल्ट, तो ये बिल्कुल एन अक्ल के मुताबिक है कि एक दूसरी दुनिया होनी चाहिए जहां इंसान से इन सब के बारे में पूरी पूरी पूछगछ हो और उसको जवाबदेही करनी पड़े, और वहां उसका अदल और इंसाफ हो। इसी के सिमिलर है कि एक इंसान है, कोई वो दुनिया में एक ऐसा फसाद का बीज वो डाल गया कि जो वो डालकर तो मर गया, लेकिन उसके जाने के बाद वो नस्ल दर नस्ल उसकी खराबियां इंसानों को जंगों पर उभारती रही, इंसानों में फूट डालती रही। या जो उसने फसाद का बीज बोया था, उसके बीज के असरात इतने हुए कि बाद में इंसानों की खुद जो खून है, जो एक दूसरे को उन्होंने कत्ल किया है, तो वो उसी वजह से क्या है, जो वो उस इंसान ने बीज डाला था, जो वो फूट डालकर वो दुनिया से चला गया। यानी वो तो दुनिया से चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद भी दुनिया में उसके असरात मौजूद हैं, जो वो फसाद वो बर्पा करके गया। तो इंसान अगर दुनिया से जाता है तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि उसका दुनिया से कनेक्शन खत्म हो चुका है। वो फिजिकल कनेक्शन खत्म हो जाता है, लेकिन जो वो काम करके जाता है उसके असरात दुनिया में मौजूद रहते हैं सब। अगर वो बुरे काम करके जाता है, जुल्म करके जाता है, तो उस जो जुल्म के असरात हैं वो भी मौजूद रहते हैं। उसी का एग्जाम्पल ले लीजिए कि एक 70 साल के आदमी ने एक 25 साल के आदमी का कत्ल कर दिया, तो उसके जाने के बाद क्या हुआ? 25 जो साल का आदमी है उसका कत्ल हुआ, उसका बेटा यतीम हो गया, उसकी बीवी मतलब बेवा हो गई। तो उनके जाने के बाद भी वो असरात रहे ना, कितना जुल्म और ज्यादती उन्होंने वो सही होगी। एक बेटे या एक बेटी के सर से उसके बाप का साया का हट जाना। ठीक है, तो दुनिया नामुकम्मल है बिना आखिरत के। तो यही अल्लाह ताला कहना चाह रहे हैं कि क्या इंसान ये समझ रखा है कि वो यूं ही मोहम्मद छोड़ दिया जाएगा, उससे कोई पूछगछ नहीं है, उसको कोई जवाब नहीं देना है किसी को। वो खुद को एक जानवर समझ रहा है, जैसे बेनकेल का ऊंट होता है, जिधर मर्जी चढ़ता फिरे, जिधर जो कुछ करता फिरे। तो क्या इंसान खुद को भी यही समझता है? तो ये अल्लाह ताला ने एक क्वेश्चन मार्क लगा के हमें खुद गौर व फिक्र करने के लिए छोड़ दिया है कि आप ये कितना बड़ा दावा कर रहे हैं, और इस दावे के पीछे आपके पास दलील क्या है। क्योंकि जितनी भी दलीलें मिल रही हैं वो आखिरत के होने की हैं, आखिरत के ना होने की एक भी दलील नहीं है। क्या किसी इंसान ने जाकर देख लिया है कि आखिरत नहीं है? किसी इंसान ने जाकर देख लिया है कि आखिरत नहीं है, तो उस चीज का इनकार आप कैसे वो कर सकते हैं? फिर अल्लाह ताला ने आयत नंबर वो 37 में फरमाया, क्या वो एक हकीर पानी का नुतफा ना था जो रहमे मादर में टपकाया जाता है। अब अल्लाह ताला इंसान की तख्लीक पे गौर व फिक्र करा रहे हैं कि आप जो ये हड्डी लाए हैं, इसको रेजा रेजा करके आप हवा में उछाला है आपने, और आप ये समझ रहे हैं कि इंसान दोबारा जिंदा नहीं हो सकता। ये कैसा, ये पॉसिबल नहीं है कि अल्लाह ताला दोबारा इसको जिंदा कर दे, इसके एक एक पुर्जे को जोड़ दे। वैसे तो अल्लाह ताला ने शुरू में ही जवाब दे दिया था कि हम तो इंसान की पोर पोर जोड़ देंगे, जो फिंगरप्रिंट है ना वो भी जैसे आज मौजूद है वैसे ही अल्लाह ताला बना देंगे। अल्लाह ताला इस पर कादिर है। फिर भी अल्लाह ताला इंसान को ये समझाना चाह रहे हैं कि पहले आप अपनी तख्लीक पे गौर व फिक्र करें, फिर इस चीज पे एतराज करना
किसी भी चीज को फर्स्ट टाइम बनाने में प्रॉब्लम होती है, या उसको अगर वो चीज एक बार बन गई तो दोबारा, अगर वो खत्म हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, तो दोबारा असेंबल करने में प्रॉब्लम होती है। तो आप दुनिया में भी देखेंगे तो यही कहेंगे कि फर्स्ट टाइम बनाने में ही प्रॉब्लम है, फर्स्ट टाइम बनाने में ही, अगर पॉसिबल नहीं होगा तो फर्स्ट टाइम ही नहीं बनेगी। जैसे कि एक कार है, कार इंसान से बनानी आ गई, उसका इंजन इंसान से, और उसके जो पार्ट्स है वो असेंबल करना आ गए। अब आप की जो कार है उसके जितने भी पार्ट्स हैं सबको अलग कर दें, अलग अलग कोनों में फेंक दें, लेकिन इंसान ने अगर उसको एक बार सीख लिया है तो वो दोबारा उसके लिए तख्लीक आसान है उस कार की बनाना। ऐसे ही इंसान है कि इंसान अगर मुश्किल होता तो पहली मर्तबा ही मुश्किल होता। जब वो एक इंसान बन गया, जो उसके बॉडी पार्ट्स हैं वो तो इसी दुनिया में मौजूद रहते हैं ना, इसी दुनिया में कहीं ना कहीं उसके हिस्से मौजूद रहते हैं, इसी जमीन में रहते हैं। अब उनको असेंबल ही तो करना है अल्लाह ताला को। तो अल्लाह ताला ये गौर व फिक्र करा रहे हैं इंसान को कि पहले आप अपनी तखलीक पे गौर व फिक्र करें। आप जो ये इतराज कर रहे हैं कि ये हड्डी को रेजा रेजा करके आप दिखा रहे हैं और इसको हवा में की उड़ाकर आप दिखा रहे हैं, तो पहले आप अपनी तखलीक पे तो गौर व फिक्र कर लें। क्या आपको लगता है ये तखलीक इतनी आसान थी? तो अल्लाह ताला ये कह रहे हैं, क्या वो एक हकीर पानी का नुत्फा ना था जो जो रहमे मादर में टपकाया जाता है। सूर्य इंसान, जिसको सूर्य दहर भी कहते हैं, उसमें अल्लाह ताला यही कहता है, क्या इंसान पर एक ऐसा वक्त नहीं गुजरा कि जो काबिल जिक्र वो चीज ही नहीं था। ऐसा वक्त भी गुजरा है इंसान पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई शख्स 25 साल का है, तो वो 25 साल पहले क्या था? वो 25 साल पहले क्या था? कुछ नहीं। वो काबिल जिक्र चीज भी नहीं था। और जो नुत्फा, ये अल्लाह ताला यहाँ बात कर रहे हैं स्पर्म की, ये की यानी नुत्फे की, इसका भी अल्लाह ताला ने जिक्र किया, हकीर पानी। यहाँ पे हकीर पानी का, और वहां पर सूरह दहर में अल्लाह ताला ने कहा कि उसका कि जिक्र करना भी इंसान मुनासिब नहीं समझता महफिल में। इंसान वो था। तो क्या इंसान को अपनी तख्लीक पे इंसान गौर व फिक्र नहीं करता कि वो एक हकीर पानी का नुत्फा था जो रहम मादर में टपकाया जाता है, जो माँ के रहम में जाता है और फिर वो जाइगोट होता है, और उसके बाद बच्चे का प्रोसेस स्टार्ट होता है क्या वो एक पानी का नुत्फा ही तो है, एक पानी का नुत्फा ही तो है। उसके अलावा क्या है वो? उससे पूरा बच्चा बनकर तैयार हो जाता है। तो ये प्रोसेस आपको बड़ा आसान लग रहा है? ये कोई मामूली प्रोसेस है कि अमुज जैसा इंसान और मेरे पानी के नुत्फे से और एक इंसान और वजूद में आ जाए? क्या है उस पानी के नुत्फे में ऐसा? ये चीज क्या इंसान को गौर व फिक्र करने वाली नहीं है? ये कैसी अल्लाह ताला ने यहाँ बात की है, इंसान को वो झंझोड़ा है कि आप गौर व फिक्र करें। क्या वो हकीर पानी का नुस्खा ना था जो रहम मादर में टपकाया जाता था? फिर अल्लाह ताला कहते हैं, फिर आयत नंबर वो 38 में, फिर वो एक लोथड़ा बना, फिर अल्लाह ने उसका जिस्म बनाया और उसके आजा दुरुस्त किए। इससे अगली ही आयत है, जो आयत नंबर 37 है, इससे अगली ही आयत है। फिर वो लोथड़ा बना, फिर अल्लाह ने उसका जिस्म बनाया और उसके आजा दुरुस्त किए। यानी जो वो पानी का नुतफा था, वही अल्लाह ताला ने उससे क्या हुआ कि जैसे ही जाइगोट हुआ, जो फीमेल एग है और जो मेल स्पर्म है, वो मिलने से एक जाइगोट तैयार होता है। अल्लाह ताला ने उसको लोथड़ा कहा है, और फिर उसका जिस्म बनाया, यानी उसके मिलने से जो जो गोस है, गोस की बोटी बनाई, उसका जिस्म बनाया, उसके एक एक ऑर्गन वहां तैयार किए। और उन ऑर्गन में सबसे पहले हार्ट तैयार होता है ताकि वो खून वो पूरे शरीर में पंप करे, और उसके आजा दुरुस्त किए। अल्लाह ताला ये जो कह रहा है सूरह क़यामा आयत नंबर 38 में, कि उसके आजा की दुरुस्त किए। तो ये आप इस चीज पे गौर व फिक्र करें कि एक पानी का नुतफा माँ के रहम में जाता है, और माँ के पास जो एक एग होता है, फीमेल एग, उससे जाकर वो मिलता है, और उसको मिलने के बाद वो जाइगोट बनता है। उसके बाद वो उसको एनर्जी मिलती है, वो कहाँ से मिलती है? वो माँ से ही मिलती है। जो कुछ माँ खाती है उसी से उसको एनर्जी मिलती है। आप खुद गौर व फिक्र करें, ऐसी क्या चीज है वहां पर कि जो औरत होती है, जो फीमेल होती है, वो क्या मतलब है, जो खाना वो खाती है, रोटी खाती है, सब्जी खाती है, यही गिजा तो खाती है जो इस दुनिया से है। और उसी रोटी से, उसी सब्जी से, उसी चावल से उस बच्चे के ऑर्गन तैयार होते हैं। आप ये देखें, ऐसा लगता है कि कोई कारीगर अंदर बैठा है पेट के अंदर। ऐसा कभी नहीं देखा होगा आपने कि कोई ऑर्गन, आंख जहां लगनी है वहां ना लगकर कहीं और बन गई। कभी आपने नहीं देखा होगा कि आंख पैरों में लग गई,
नाक पेट पर लग गई, ये नहीं देखा ना। ऐसा लगता है कि बड़ी कारीगरी से इसको बनाया गया है, एक अंदर कारीगर मौजूद है जो एक एक चीज को बड़ी बेहतरीन तरीके से असेंबल कर रहा है, और सिर्फ असेंबल नहीं कर रहा बल्कि शुरू से ही उस चीज की तख्लीक वो कर रहा है उसी की वजह से। एक औरत दाल खाती है, चावल खाती है, रोटी खाती है, और तरह तरह की जो चीजें हैं जो अल्लाह ताला ने हलाल हलाल रखी हैं वो खाती है, और उन्हीं से वो चीज, वो प्रोसेस, वो बच्चा तैयार होता है। ये आपको बड़ा आसान प्रोसेस लग रहा है? क्या इस पर गौर व फिक्र नहीं करता है इंसान? ये कितना मुश्किल प्रोसेस है, ये कितना मुश्किल प्रोसेस है। इंसान अपनी तकलीफ पे अगर गौर व फिक्र करे तो वो खुद देखेगा कि वो बन कैसे गया, वो बन कैसे गया कीट से पानी से। क्या ये इत्तेफाक हो सकता है? क्या ये एक्सीडेंटली हो सकता है? इतना प्यारा निजाम जो साइंस जो साइंसदान कहते हैं, जो एथियस्ट हैं, वो लोग कहते हैं कि एक पहली सेल वजूद में आई 4.5 बिलियन ईयर्स पहले, एक सेल वजूद में आई, और वो सेल, उसी से सारी मखलूकात बन गई, एक ही सेल से इतनी मखलूकात बन गई, और फिर उससे आगे निजाम चलने लगा। ठीक है जी, मखलूकात बन गई, एक सेल से आपने बना दी। तो ये अलग अलग तरह की मखलूकात, अलग अलग सलाहियतें रखने वाली मखलूकात, तो उसकी वो मजीद वो अपना जो फिलोसफी होती है उसको भगाड़ते भगाड़ते दिमागी मरीज बन जाते हैं। उनके पास नहीं है जवाब इन चीजों के ना, तो ये कह देते हैं बस, जहाँ वो जवाब नहीं मिलता, करोड़ों अरबों साल बाद ऐसा हुआ होगा, करोड़ों अरबों साल बाद ऐसा हुआ होगा, तो यही चीज वो कर रहे हैं, यही वो भगाड़ते भगाड़ते आगे वो बढ़ जाते हैं। तो फिर अल्लाह ताला ने ये कहा कि वो एक लोथड़ा बना, फिर अल्लाह ने उसका जिस्म बनाया और आजा दुरुस्त किया। अल्लाह ताला कह रहे हैं ये सब काम हमने किए हैं। जो ये आपको काम लग रहा है खुद ब खुद होगा, एक्सीडेंटली होगा, ये हो नहीं सकते थे ऐसे। फिर अल्लाह ताला ने उसके बाद कहा आयत नंबर 39 में, फिर उससे मर्द और औरत की दो किस्में बनाई। आयत नंबर 39 में, फिर उससे मर्द और औरत की दो किस्में बनाई, यानी आपको आपके आजा दुरुस्त किया, आपका जिस्म बनाया, और फिर उसमें भी क्या, आपको मेल और फीमेल में भी रखा अल्लाह ताला ने। औरत और मर्द की दो किस्में अल्लाह ताला ने बनाई। ये भी गौर व फिक्र करने वाली बात है। अगर ये सब एक एक्सीडेंट के तौर पर ही होता, एक हादसाती तौर पे ही होता कि इंसान वजूद में आ गया, एक सेल पहली वजूद में आ गई और उसके बाद ये सिलसिला आगे चलने लगा, और कोई खुदा वगैरह नहीं, अगर ये होता, तो वो सेल जो जो फर्स्ट मर्तबा वजूद में आई, हमारा यही क्वेश्चन है, वो मेल थी या फीमेल थी? अल्लाह ताला कह रहे हैं कुरान में, हमने हर चीज वो जोड़ों की शक्ल में बनाई, पेड़ की शक्ल में बनाई, उसमें एक नर है एक मादा है, हर चीज में जोड़ा है। लेकिन वो आप जो कह रहे हैं कि वो एक सेल वजूद में आई और उससे बाकी की चीजें बनी, तो उससे मेरे भाई ये मेल और फीमेल का निजाम कैसे बन गया? ये दो अलग अलग मखलूक कैसे बन गई? हमने चलो मान लिया कि अलग अलग बन गई, चले आपने अरबों साल लगा दिए, कुछ भी आपने बता दिया, मान लिया कि चलो अलग अलग बन गई, ठीक है। अब ये जनरेशन आगे कैसे चली? मर्द और औरत के मिलाप से सेम उसी के जैसा एक प्रोडक्ट बनकर तैयार हो रहा है, ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो वही है इन चीजों के जो कि वो अपना फलसफा भगाड़ते भगाड़ते, जैसा मैंने कहा, खुद ही दिमागी मरीज बन जाते हैं, उनके पास खुद इन चीजों के जवाब नहीं है। अ, अल्लामा इकबाल का वो शेर है ना कि एक सजदे को जिसे तू गिरा समझता है, लाख सजदों से देता है इंसान को निजात। यानी एक सजदा करना है कि ये सब काम अल्लाह ताला ने किया है, बस, दैट्स इट। लाख सजदों से इंसान को देता है निजात। अब वो एक सजदा नहीं कर रहे हैं, इस काम के पीछे अल्लाह ताला को नहीं मान रहे हैं, तो फिर क्या है, वो लाख सजदे कर रहे हैं। कभी वो डार्विनिज्म की तरफ जाएंगे, कभी वो साइंटिज्म की तरफ जाएंगे, कभी वो किसी और तरफ जाएंगे, कभी वो कुछ और भगाड़ेंगे, और इनके पीछे कोई अकली चीज नहीं है। वैसे वो बहुत कहेंगे हम रेशनल हैं, हम अकलियत अकलियत पसंद लोग हैं, लेकिन इन्हीं चीजों के जवाब उनके पास मौजूद नहीं है कि ये कैसे हुआ, ये मर्द और औरत का निजाम कैसे बन गया हादसाती तौर पर। बना तो बना, ठीक है, बन गया, एक मेल बन गया एक फीमेल बन गई, डेट से वो अपनी जिंदगी जीते खत्म हो जाते। ये क्या हुआ कि उनके बीच इंटरकोर्स होगा और फिर आगे सिलसिला वो आगाज होगा और उन्हीं के जैसे बनेंगे? ये कैसे पॉसिबल हुआ? और इसमें भी ये कैसे पॉसिबल हुआ कि इन आप दुनिया की हिस्ट्री वो उठाकर देख लीजिए, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि औरत और मर्द अलग अलग अनुपात में हैं। यानी कि रेशो जो है हमेशा औरतों का और मर्दों का
समथिंग समथिंग बराबर ही रहा है। अगर एक ये हादसाती तौर पर होता तो कभी तो इतने अरबों सालों में एक वक्त ऐसा आता कि फीमेल पैदा होना ही बंद हो जाती। मेल ही मेल पैदा होते हैं तो इंसानी नस्ल आगे चलती नहीं, वो वहीं खत्म हो जाते। या एक वक्त ऐसा भी आ सकता था कि फीमेल फीमेल ही पैदा हो, मेल पैदा ना हो, तो फिर इंसानी नस्ल आगे चले ही नहीं। ऐसा भी हो सकता था। लेकिन ये क्या चीज है, इसके पीछे क्या आपको कोई कारीगर नहीं दिख रहा? क्या कोई खुदा नजर नहीं आ रहा? ये काम अल्लाह ताला कर रहा है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि हादसाती तौर पर हो जाए। ये काम इतने बड़े बड़े काम है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि हादसाती तौर पर ये काम हो जाए कि अल्लाह ताला एक वो यही कहते हैं, क्या वो हकीर इंसान खुद को सोचे, हकीर पानी का नुतफा ना था जिसका इंसान जिक्र करना भी महफिलों में वो गवारा नहीं करता, जो रहमे मादर में टपकाया जाता है, फिर वो एक लोथड़ा बना, और फिर अल्लाह ने उसका जिस्म बनाया, उसके आजा दुरुस्त किए, फिर उससे मर्द और औरत की दो किस्में बनाई। फिर अल्लाह ताला आयत नंबर 40 में कह रहे हैं, फिर अल्लाह ताला आयत नंबर 40 में इस चीज का अल्लाह ताला ने फाइनल जवाब दे दिया, क्या वो इस पर कादिर नहीं है कि मरने वालों को फिर से जिंदा करे? अब आप गौर व फिक्र करें, जो अल्लाह ताला ने गौर व फिक्र कराया, इंसान की तख्लीक पे गौर व फिक्र करें, और फिर अल्लाह ताला का ये जवाब सुने, क्या वो इस पर कादिर है, या अल्लाह ताला इस पर कादिर नहीं है कि वो मरने के बाद तुम्हें दोबारा तुम्हें जिंदगी दे दे? अच्छा, जिस चीज के हम यूज टू हो जाते हैं ना, जो हम देखते रहते हैं, वो हमारे लिए कोई मिरेकल नहीं लगता, वो चमत्कार नहीं लगता। ये बच्चों की पैदाइश हमारे लिए सबसे बड़ा मिरेकल हो सकता है। अगर फॉर एग्जाम्पल हमने ये चीज नहीं देखी होती कि बच्चे ऐसे पैदा होते हैं, हमने ये नहीं देखी होती, अभी तो हमें पता है ना, बचपन से हम देखते आए हैं तो इस चीज के यूज टू हम हो चुके हैं, लेकिन अगर हमें नहीं पता होता, फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए, और कोई आकर हमें बताता, कोई थर्ड पर्सन आकर हमें बताता, हमने कभी नहीं देखा जिंदगी में, कोई थर्ड पर्सन आकर हमें बताता कि ये आपके जैसा एक इंसान और कैसे बन सकता है, वो ऐसे बनेगा, एक मेल है एक फीमेल है, इनका निकाह के बाद जो इनका मतलब कि निकाह होगा, और निकाह के बाद इनकी औलाद होगी, और औलाद ऐसे ऐसे होगी कि जो पानी का एक नुतफा है वो रहमे मादर में जाएगा और उससे पूरा बच्चा बनकर तैयार हो जाएगा, तो कोई उसको उसको सुनकर ही हैरान हो जाएगा। अच्छा, वो बच्चा तैयार तो होगा जब वो पूरा, ऐसा नहीं है कि वो बच्चा हाफ तैयार है और मतलब कि बाहर आ गया, उसकी डिलीवरी हो गई, नहीं, पूरा टाइम उसको लगता है, जब वो पूरा बच्चा तैयार हो जाता है उसके बाद ही वो मतलब खुद ब खुद वो बाहर आता है। कोई उसमें मतलब कि कोई ऐसा नहीं है कि कोई मशीनों की जरूरत है, आजकल तो पढ़ने लगी, लेकिन जो फितरी जो निजाम है, जो और मखलूकात में भी और इंसानों में भी यही था कि बच्चा खुद ब खुद अपना टाइम पूरा होने के बाद बाहर आता है, खुद ब खुद। और जो माँ, जो उसकी माँ है, उसके जो ब्रीस्ट है वहां से दूध, अगर बच्चा पैदा नहीं हुआ तो 1 सेकंड पहले तक भी दूध नहीं निकलेगा, और पैदा होने के बाद दूध निकलना वो शुरू हो जाता है। तो ये हादसाती तौर पे हो जाएगा इतना बड़ा, ये इतना बड़ा कारखाना है, इतनी बड़ी जो ये एक इंडस्ट्री अल्लाह ताला ने लगा दी है जगह जगह, ये हादसाती तौर पर है? क्या कोई ये मानने के लिए तैयार है? अगर मैं आपसे कहूं कि जो ये बोइंग 0707 जो ये प्लेन है, जो ये एरोप्लेन है, ये एक फैक्ट्री में ये खुद ब खुद बन गए, क्या आप मान लेंगे? मैं आपसे कहूं कि भाई हादसाती तौर पे क्या हुआ, कि प्लेन में क्या होता है, वो कुछ लोहा है, कुछ प्लास्टिक है, और कुछ उसमें दूसरा मतलब फैब्रिक है, और कुछ आइटम और मतलब कि इस्तेमाल हुए हैं, और मैं आपसे एक फलसफा भगा रहा हूं कि अरबों साल पहले ऐसा हुआ था, बारिश पड़ी थी और उसके बाद एसिड रेन हुई थी, जिसकी वजह से जो लोहा जमीन पे पड़ा था उसने आकार ले लिया, प्लास्टिक ने आकार ले लिया, और बाद में वो धीरे धीरे फिर तूफान आ गया। मैं ही मतलब कोई स्टोरी क्रिएट कर दूं, मैं तो कर सकता हूँ ना, मेरे पास तो अरबों साल है, मैं कि लगाता रहूंगा कि करोड़ों साल बाद ये हुआ कि तूफान आया, तूफान से वो असेंबल हुआ, उसकी पंखड़ियां बन गई, उसका इंजन बन के तैयार हो गया, और उसके अंदर फ्यूल भी कहीं से आ गया, और वो फिर ये देखो ये एरोप्लेन ऐसे बन गया। अगर मैं ऐसे कहूंगा तो कहेगा भाई क्या बेवकूफी वाली बात कर रहा है, उससे बड़ा बेवकूफ कौन है दुनिया में? सामने से मुझे यही जवाब मिलेगा अगर मैं किसी से कहूँ कि एरोप्लेन ऐसे बना। एरोप्लेन छोड़ें, जो ये बाइक है, मैं अगर बाइक के बारे में कहूँ तो भी ऐसे ही कहेगा। यहाँ तक कि ये जो घड़ी हमारे कमरे में लगी हुई है, अगर मैं इस घड़ी के बारे में कहूँ कि ये घड़ी खुद ब खुद बन गई है, ऐसा ऐसा हुआ है तो ये बन गई है, तो कोई मेरी बात का यकीन नहीं करेगा। जो ये लाइट हमारे कमरों में जल रही है, अगर मैं लाइट के बारे में कहूँ कि ये लाइट ऐसे ऐसे बनी है, खुद ब खुद बन गई है, तो कोई मेरी बात का यकीन नहीं करेगा। लेकिन हम लोग उनकी बातों का यकीन कर लेते हैं कि ये इंसान खुद ब खुद बन चुका है। ये तो और बड़ी बेवकूफी की बात है। मान सकते हैं घड़ी खुद ब खुद बन जाएगी, मान सकते हैं ये गाड़ी खुद ब खुद बन जाएगी, पॉसिबल हमने कर दिया,
ये भी नहीं बन सकती खुद ब खुद जब तक इसका कोई क्रिएटर ना हो, लेकिन चलो ठीक है मान लिया। लेकिन इंसान खुद ब खुद बन जाए, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो यही चीज है, अल्लाह ताला ये तकलीफ पे इंसान को गौर व फिक्र कराया। और फिर अल्लाह ताला ने कहा, क्या वो इस पर कादिर नहीं है कि मरने वालों को फिर से जिंदा करे? आप सोचो आप, वो कादिर नहीं है इस पे, वो कुदरत नहीं रखता? जब उसने तुम्हें पहली बार पैदा किया है तो क्या वो आपको दोबारा पैदा नहीं कर सकता? ये जो दलील अल्लाह ताला ने दी है, इसमें दो तरह के लोग हैं। एक तो वो लोग हैं जो अल्लाह ताला को मानते हैं, यानी वो ये मानते हैं कि हमारा पैदा करने वाला खुदा है। और एक वो तरह के लोग हैं, उन लोगों के लिए भी इसमें दलील है, जो ये कहते हैं कि हमारा पैदा करने वाला कोई खुदा नहीं है। दोनों के लिए इसमें दलील है। पहली, जहां तक अगर उन लोगों का ताल्लुक है जो ये मानते हैं कि हमें बनाने वाला कोई ना कोई खुदा है, भले ही वो उसको अल्लाह माने, उसके साथ किसी को शरीक वो ठहरा लें, और लेकिन वो कम से कम ये मानते हैं कि हमें बनाने वाला कोई खुदा है, और हमारी जो पैदाइश की जो शुरुआत है वो एक नुत्फे से हुई, और अल्लाह ताला ने हमें इंसान बना दिया, और ये अल्लाह ताला की कुदरत और हिकमत का वो करिश्मा है। तो उनके लिए तो ये दलील जो अल्लाह ताला ने दी है ये काफी है। आखिरत के होने की ये जो दलील अल्लाह ताला ने दी है ये काफी है उनके लिए, कि आप जब ये मानते हो कि अल्लाह ताला ये काम कर सकता है, तुम्हें पहली बार पैदा कर सकता है, तो दोबारा आप पैदा करना कौन सा मुश्किल भरा काम है उसके लिए। जब एक नुत्फे से वो बना सकता है, जब कोई चीज तुम थे ही नहीं, बाकी जो तुम्हारी बॉडी है वो डिस्पोज होके जाएगी तो इसी मिट्टी में, इसी मिट्टी से तुम्हें दोबारा जिंदा उठा खड़ा कर देना उसके लिए कहाँ से मुश्किल हो गया। तो उनके लिए तो ये दलील काफी है जो अल्लाह ताला को मानते हैं, खुदा को मानते हैं, कि हाँ उसकी कुदरत से ये काम बाहर नहीं है। लेकिन जो लोग अल्लाह ताला का इनकार करते हैं, खुदा को नहीं मानते, तो और इस निज़ाम को जो इंसान पैदा हुआ उसको एक इत्तेफाक वो मानते हैं, तो वो अपनी हट धर्मी पर वो अड़े हुए हैं। यानी वो खुद इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि इंसान खुद ब खुद बन गया, यानी ये अपने आप में इतना इतना बड़ा वो दावा है कि इसको बेवकूफ़ी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। ये ऐसा ही दावा है कि कोई उठकर कहे कि जो लंदन है, जो न्यूयॉर्क है, ये खुद ब खुद बन गए सिटी। इसमें जो जो घर वगैरह हैं ये खुद ब खुद बन गए, जो बिल्डिंगें हैं वो खुद ब खुद बन गई। ये इतना ही बड़ा दावा है। क्या ये पॉसिबल है खुद ब खुद बन जाए? या औरत और मर्द का जो एक एक निजाम अल्लाह ताला ने बनाया है, क्या ये पॉसिबल है? क्या इंसान ने कोई रोबोट ऐसा बनाया है कि दो रोबोट इंसान ने बना दिए हों, एक मेल और एक फीमेल हो, और उनके मिलाप से अगला रोबोट ऑटोमेटिक बनकर तैयार? क्या बना दिया है ऐसा कुछ? इत्तेफाकी तौर पर आप कहने के लिए तैयार हैं, आप ये काम वो करना चाहें तब भी नहीं कर सकते हैं। अगर एक बात, यहाँ पर एक दलील ये भी है कि अगर कोई बच्चा, जैसा बच्चा माँ के पेट में रहता है 9 महीने तक, 7 महीने तक या 8 महीने तक, जो इस्लाम में मुद्दत है वो 6 महीने के बाद, यानी 6 महीने के बाद वो कभी भी डिलीवरी हो सकती है, वो जायज बच्चा कहलाता है 6 महीने के बाद। ये हमने सूर्य लुकमान में भी हमने इसको देखा था। अ, तो बच्चा 6 महीने के बाद कभी भी उसकी डिलीवरी हो सकती है, 7वें महीने में भी हो जाती है, 8वें में भी, कि 90 में भी, और कुछ बच्चे 9 महीने के बाद भी जाते हैं। कि जब बच्चा माँ के पेट में रहता है, तो वहां पर अगर फॉर एग्जाम्पल माँ के पेट में जुड़वा बच्चे हैं, आप थोड़ा गौर व फिक्र करें, माँ के पेट में जुड़वा बच्चे हैं, और वो अंदर की मान लीजिए वो बातें कर रहे हैं अंदर, उनमें से एक बच्चा है, वो उनके लिए तो वही दुनिया है ना माँ का पेट, उन्होंने माँ के पेट के बाहर कुछ देखा ही नहीं है अभी। अगर उनमें से एक बच्चा कहे कि भाई एक वक्त ऐसा आएगा, वो कुछ टाइम बाद वो यहाँ से निकल जाएंगे और एक बड़ी दुनिया में हम एंटर करेंगे, जहां हम अपने पैदा करने वाली माँ को भी देखेंगे, हम अपने पैदा करने वाले को भी देखेंगे। दूसरा बच्चा बोलेगा, अरे कैसी बातें कर रहा है, यहाँ तो हमें ये खाना ये इससे मिल रहा है, नलकी से, जो नलकी लगी रहती है ना, जो टूंडी से बच्चे की लगी रहती है, जिसको काटते हैं डॉक्टर डिलीवरी के बाद, कि क्या नलकी भी हमारे साथ जाएगी? उसको समझ में नहीं आएगा ये क्या बात कह रहा है। लेकिन दूसरा बच्चा कह रहा है, देखो पॉसिबल हो सकता है ऐसा ना, मुझे लगता है कि एक दुनिया और है इसके बाद, यही हमारी असल नहीं है। तो बच्चा कहेगा, नहीं यार, हमें तो यहीं रहना है, ये इस नलकी से हमारा खाना आ रहा है और हम यहाँ मौजूद हैं। अगर उनके आपस में गुफ्तगू हो, अच्छा उनमें से एक बच्चा कहे कि एक बच्चा कहे, मैं अपने पैदा करने वाले को फील करता हूँ, क्या तुम भी करते हो? वो कह रहा है कि नहीं, मैंने तो कभी फील नहीं करा। पर वो कहता है कि हाँ मैंने फील करा अपने पैदा करने वाले को, वो मुझसे बातें भी करती है।
جو ماں ہے اپنے بچے سے باتیں بھی کرتی ہے، تو وہ دوسرا کہے گا نہیں نہیں ایسا ایسا کچھ نہیں ہے. یعنی اگر ان کو بتایا جائے کہ ایک باہر کی دنیا بھی ہے، اس وقت انہیں سمجھ میں آ جائے گا؟ نہیں سمجھ میں آئے گا انہیں. لیکن وہی بچے جب باہر آ کر دیکھتے ہیں تو وہ اپنے پیدا کرنے والے کو بھی دیکھتے ہیں کہ یہ ماں ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور اس میں ہمارے کوئی نلکی بھی لگی بھی نہیں ہے جس سے ہمیں کھانا مل رہا ہے. یہاں تو ایک الگ دنیا ہے. ایسے ہی کیونکہ وہ ابھی اس لیول پہ نہیں پہنچے تھے، ایسے ہی جیسے ماں کے پیٹ میں اس بچے کو سمجھ میں نہیں آتا، ایسے ہی کیونکہ انہوں نے وہ چیز دیکھی نہیں تھی. سیم ایسے ہی ہم بھی ابھی اس دنیا میں ہیں تو ہمیں وہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیسے اٹھائے گا، دوسری دنیا کیسے پاسبل ہے، جنت جہنم اللہ تعالیٰ نے وہ کیسے بنائے ہیں، جنت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں رکھی ہیں، وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ابھی. لیکن جب ہم کہ وہاں پہنچ جائیں گے ہمیں سمجھ میں آنے لگے گا. اس کا ایک ایگزامپل میں نے پہلے بھی دیا تھا، وہ یہی ہے کہ اگر کسی 3 سال کے یا 2 سال کے بچے سے کہیں کہ شادی شدہ زندگی کیا ہوتی ہے، کیا اسے پتا چلے گا؟ پتا چلے گا اسے؟ مطلب کہ شادی شدہ زندگی کیا ہوتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، اسے ہرگز پتا نہیں چلے گا. لیکن اسی بچے کو بڑے ہو کر اسی چیز سے واسطہ پڑھنے والا ہوتا ہے اور اس کو پتا، اس کو سب پتا بھی لگ جاتا ہے. پھر وہ اس کو بتا بھی دے گا. لیکن وہ کہ جب وہ 2 سال کا ہے تب اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا کیا ہوتی ہے شادی شدہ زندگی. لیکن جب وہ بڑا ہوگا اس لیول پہ پہنچے گا اسے سمجھ میں آ جائے گا. ایسے ہی انسان ہے، انسان کو ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہے جنت، کیا ہے آخرت، کیا ہے موت کے بعد کی زندگی. لیکن جب انسان اس لیول پہ پہنچے گا تو اسے سمجھ میں آ جائے گا. ایسے ہی ماں کے پیٹ میں جو بچے کی بچہ ہے اسے سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ باہر کی دنیا کیسی ہے. وہ اپنی دنیا اسی کو سمجھے بیٹھا ہے، پیٹ کو، ماں کے پیٹ کو ہی اپنی پوری دنیا سمجھے بیٹھا ہے کہ یہی ہے، یہیں مجھے کھانا مل رہا ہے، یہیں میری آکسیجن کا انتظام ہے، یہیں یہ جو پائپ آ رہا ہے اس پائپ کے ذریعے مجھے غذا مل رہی ہے. مجھے تو اور کچھ لگتا نہیں ہے کہ اس کے بعد بھی کوئی زندگی ہے. مجھے تو نہیں لگتا کہ یہاں کے بعد بھی کوئی دوسری دنیا ہے. مجھے تو میرا پیدا کرنے والا بھی نظر نہیں آ رہا. کیا ماں کے پیٹ میں اس کو اپنی ماں نظر آتی ہے؟ تو وہ یہی کہتا ہے مجھے تو پیدا کرنے والا بھی نظر نہیں آ رہا ہے. لیکن وہی بچہ جب باہر آتا ہے تو اس کو سب کچھ پتہ لگ جاتا ہے کہ ہاں پیدا کرنے والا بھی ہے، اس کے باہر بھی ایک دنیا تھی. وہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے، وہاں تو میں ہل ڈل بھی نہیں سکتا تھا، چل بھی نہیں سکتا تھا. ہاں بیچ بیچ میں ماں کے جو لاتے تھی میں وہ مارتا تھا، جو وہ فیل کرتی ہیں لیڈیز. لیکن بعد میں اس کو پورا ایک اس دنیا سے مطلب واسطہ وہ کے پیش آتا ہے نا. تو یہی انسان ہے. انسان کو ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مرنے کے بعد کی زندگی کیسی ہوگی. لیکن یہی انسان ہے، اس کو واسطہ بھی پیش آئے گا، پاسبل ہے. اللہ تعالیٰ دلیل دے رہا ہے کہ تم اپنی پیدائش پہ غور و فکر کرو کہ ہم نے تمہیں کیسے پیدا کیا ہے، ہم نے تمہیں کیسے پیدا کیا ہے. اور پھر تم اس چیز پہ آپ خود وہ پہنچ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز پہ قادر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا؟ ایک حقیر سا پانی کا نطفہ جو ماں کے پیٹ میں گیا، پھر اس سے آپ کا لوتھڑا بنا، مطلب بوٹیاں بنی، اس سے آپ کے organ بنے. آپ کا جو جسم ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے درست کیا. ایسا نہیں ہے کہ آنکھ کہیں اور لگا دی، ناک کہیں اور لگا دی، اور اتنا پرفیکٹلی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا. اور آپ میں سے مطلب میل اور فیمیل بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے. ایسا نہیں ہے کہ صرف میل ہی میل بنا دی، وہ نسل ہی ختم کر دی. نہیں، میل اور فیمیل بنائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں ہے کہ آپ کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ وہ کر دے. خود سوچو، کیا وہ قادر نہیں ہے کہ آپ کو اٹھا دے؟ تو یہ کافی اپنے آپ میں بڑی دلیل ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہ دی ہے رپلائی میں ان لوگوں کے جو موت کے بعد کی زندگی کا انکار وہ کرتے تھے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے اور جب ان آیتوں پہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوچھتے تھے، جیسے یہ ہے کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر دے، جب اس آیت پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوچھتے تھے تو بہت سی روایتیں ایسی ہیں جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان آیتوں پہ پوچھتے تھے تو وہ جواب میں کہتے تھے بلا، یعنی بلا، کیوں نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ کوشچن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں ہے کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر دے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کیوں نہیں، بالکل وہ قادر ہے اس پہ. اور کبھی کبھی کہتے تھے سبحان اللہ فا ولا، یعنی پاک ہے تیری ذات پروردگار، کیوں نہیں، کیوں نہیں کرے گا تو قادر، پاک ہے تیری وہ ذات. تو ایسے ہی اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ دہرایا کرتے تھے. ابو داؤد میں اور ابن ابی حاتم ابن زریر میں یہ روایتیں موجود ہیں. اور ایک ابو داؤد میں اور ایک روایت ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس کے راوی ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نے فرمایا کہ جب تم سورہ 3 میں آیت کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے، سورہ 3 کی آیت ہے، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے، تو پڑھو تو کہو بلا و انا اللہ
जालिका मिन शाहिदीन, क्यों नहीं मैं इस पर गवाही देने वालों में से हूँ। यानी जब आप ये आयत पढ़ें तो आप ये कहें क्यों नहीं मैं इस पर गवाही देने वालों में से हूँ, कि अल्लाह सब हाकिमों से बड़ा हाकिम नहीं है, तो आप कहो क्यों नहीं मैं इस पर गवाही देने वाला हूँ कि वो सबसे बड़ा हाकिम है। और जब सूरह कयामत की आयत है तो इस पे तो मैंने आपको बता दिया है कि अल्लाह ताला इसमें कि वो कहते थे। और कुरान में अल्लाह ताला ने एक जगह और है, क्या इस कुरान के बाद ये लोग और किस बात पर ईमान लाएंगे, तो अल्लाह ताला ने वहां क्वेश्चन मार्क लगाया है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वो तुम कहा करो आमन्ना बिल्लाही, यानी हम ईमान लाते हैं अल्लाह पर। तो ये रिवायतें मौजूद हैं। तो इस चीज से हमें एक डिफरेंस ये भी पता चला कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान पढ़ना और हमारे कुरान पढ़ने में कितना जमीन और आसमान का फर्क है। हम कुरान को पढ़ते हैं बिना समझे, उन आयतों को पढ़कर वो गुजर जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलती कि वो आयत हमसे क्या कह रही है, जब भी तो हम उसका रिप्लाई करेंगे। अल्लाह ताला ये जो क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, क्या इंसान ये समझ रहा है कि वो यूं ही मुहम्मल छोड़ दिया जाएगा? अगर ये आयत हम समझेंगे तभी तो उसका जवाब देंगे। हमने ये कुरान में आयत पढ़ी लेकिन हमने कभी समझा नहीं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं अरेबिक लैंग्वेज कितनी जरूरी है हमारे लिए, उसका सीखना कितना जरूरी है। हम अपने रब से हम कलाम नहीं हो पा रहे हैं, सारी लैंग्वेज हमने सीख ली, अरबी क्यों नहीं सीख रहे हैं? कम से कम इतनी अरबी तो सीख लें कि कुरान हमें समझ में आने लगे कि अल्लाह ताला हमसे क्या कह रहे हैं, ताकि जब हम कुरान को पढ़ने बैठे अरबी में तो हमें पता हो कि अल्लाह ताला हमसे क्या बातें कर रहे हैं, तभी तो हम उन चीजों का जवाब देंगे और अरबी में ही जवाब दें। अरबी आती है, अरबी में ही जवाब दें। तो ये देखें, कुरान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ना और सहाबा इकराम का पढ़ना और हमारा पढ़ना कितना डिफरेंस है। हम एक एक रमजान में 8 8 कुरान मुकम्मल कर दे रहे हैं। भाई क्या पढ़ा आपने 8 कुरान में? एक आयत का मतलब आपको पता नहीं है, क्या पढ़ा आपने 8 कुरान में? क्या उसका हक अदा कर दिया? नहीं किया। तो यही चीज है कि हमें कुरान को समझ कर भी पढ़ना चाहिए, ताकि जो एक कुरान की आयतें आती हैं, अल्लाह ताला क्वेश्चन करता है, अल्लाह ताला कुछ नेमतें बताता है। जो कुरान पढ़कर लोग रोते हैं तरावियों में, अरब से वीडियो आप देखते होंगे या जिनको अरबी आती है, वो कुरान पढ़ते पढ़ते रोने लगते हैं, बेसाख्ता उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। क्यों निकलते हैं? उस चीज को फील कर रहे होते हैं वो, कि अल्लाह ताला जहन्नुम के अजाब का जिक्र कर रहा है, अल्लाह ताला तो बिल्कुल यहाँ पे मेरा ही जिक्र कर रहा है, ये आदत तो मेरे अंदर है, तो वो रोने लगते हैं, फील करते हैं। और कुरान में भी आयत है कि जब अहले किताब में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जब अल्लाह की आयतें उनके सामने पढ़ी जाती हैं तो उनकी आंखें वो तर हो जाती हैं, आंसू निकलने लगते हैं। क्यों निकलने लगे लगते हैं वो आंसू? हमारे सामने तो कोई अजाब की आयतें भी पढ़ रहा है तो हम कह रहे हैं सुबहान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बेहतरीन किरात की है, सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, मजा आ गया। भाई अजाब की आयतें पढ़ रहा है वो, अजाब की आयतें पढ़ रहा है वो, हमें पता ही नहीं है क्या हो रहा है। हमें कोई अरबी में गाली भी देकर चला जाएगा ना, सुबहान अल्लाह कह देंगे हम उसको। इस लेवल पर हम आ चुके हैं। तो हम अरबी लैंग्वेज को सीखें, और जब तक कोशिश यही करें, प्रायोरिटी यही बनाएं कि अरबी हमें समझ में आए, अरबी को ही हम सीखें। कम से कम इतनी तो सीखें कि कुरान हमें समझ में आने लगे। एक्स्ट्रा कुछ ना सीखें, कम से कम इतना तो की जरूर सीखें। और दूसरी बात यह है कि जब तक नहीं आ रही, जब तक आपको टाइम नहीं मिल रहा है, पहली बात तो सबसे बड़ी पहली प्रायोरिटी पे उसी को रखें। लेकिन फिर भी जब तक आप मशरूफ हैं, आपके साथ कोई दूसरी प्रॉब्लम चल रही है, तो कम से कम आप कुरान के साथ साथ उसका तर्जुमा भी पढ़ें। स्कॉलर्स ने हमारे लिए तर्जुमा इसलिए ही किया है ताकि इन आयतों का हम जवाब भी दे सकें, जो कि जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन आयतों का जवाब देते थे। तो ये इंसान की तख्लीक से अल्लाह ताला ने दलील दी है आखिरत की। पहली दलील तो वो दी थी, क्या इंसान खुद को जानवर समझ रहा है, वो वो ये समझ रहा है कि वो यूं ही छोड़ दिया जाएगा। दूसरी दलील अल्लाह ताला ने ये दी है, अब इंसान अपनी पैदाइश पर गौर व फिक्र कर ले और फिर खुद सोचे कि अल्लाह ताला इस पर कादिर नहीं है कि वो मरने के बाद इंसान को दोबारा जिंदा कर देगा। तो यही हमारे लिए क्वेश्चन है। इस पर हम ये दो क्वेश्चन हम आज क्लास में छोड़कर जा रहे हैं। पहला ये कि हम खुद को ये समझ रहे हैं कि हम बेनकेल के ऊंट की तरह छोड़ दिए जाएंगे, हम यूं ही छोड़ दिए जाएंगे दुनिया में जो मर्जी करते फिरें। दूसरा क्वेश्चन ये है, क्या हमारी पैदाइश इतनी मुश्किल है कि अल्लाह ताला के लिए काम मुश्किल है कि वो हमें मरने के बाद दोबारा जिंदा नहीं कर सकता? ये कि अल्लाह ताला हमें मरने के बाद दोबारा जिंदा कर सकता है, ये मुश्किल काम है अल्लाह ताला के लिए? तो ये दो क्वेश्चन है, इस पे हमें भी गौर व फिक्र करना चाहिए, ताकि हम अपनी आखिरत की तैयारी करें, आखिरत बनाएं, आखिरत के लिए इन्वेस्ट करें और अपनी सारी सलाहियत, अपने माल, अपना जान, सब कुछ आखिरत के लिए हम खपा दें। जज़ाकल्लाहु खैरा।